Good morning, student. Today my topic is the revision topic is sports and nutrition, macro and micronutrient, nutritive and non-nutritive components. Micro and macro is very important for exam and unit test and pre-boards. अब कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम्पल के द्वारा कि व्हाट इज द मैक्रो, व्हाट इज द माइक्रो, व्हाट इज द न्यूट्रिएंट्स, व्हाट इज द नॉन न्यूट्रिटिव एंड न्यूट्रिटिव. So today let's start the micronutrients. Minerals and the vitamins are included in the micronutrient. Macronutrients are required in very small amount. These nutrients are extremely significant for normal functioning of the body. The main functionals of these nutrients is to be enable various good chemical reactions occur in the body. Minerals are the further divided into two categories, namely macro minerals and micro minerals or trapped minerals. The examinations of the micronutrient is given below. बताया गया आपको कि मैक्रो द बड़ा पार्ट, बिग पार्ट ऑफ द न्यूट्रिशन, एंड माइक्रो स्मॉल न्यूट्रिशंस. लाइक दैट मिनरल्स, माइक्रो. नंबर 1 minerals. Number 2 vitamins. Okay, minerals is the first. मैक्रो मिनरल्स बड़े पार्ट में जो है मैक्रो मिनरल्स एंड micro minerals. Micro minerals. Macro mineral is the five part: calcium, potassium, sodium, magnesium, and phosphorus. These are macronutrients. Macronutrients, the big part of the nutrients, macro, and the micro, iodine, iron, chromium, copper, and cobalt. मैक्रोन्यूट्रिएंट मैंने आपको बता दिया था पहले. ठीक. न्यूट्रिएंट्स इज टू टाइप्स. देयर आर टू टाइप्स: मैक्रोन्यूट्रिएंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट. मैक्रोन्यूट्रिएंट का रिवीजन हो चुका है. टुडे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. Micronutrient is a two types: minerals and vitamins. Mineral is a two types: macro minerals, micro minerals. Macro minerals is the
कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस. And micronutrient is the iodine, iron, chromium, copper, cobalt. ये चीजें हमें खाने के द्वारा प्राप्त होती हैं, जो हमारे शरीर में ऑर्गन उसको यूज करता है और इससे हमें मिनरल्स, विटामिन, न्यूट्रिएंट्स, ये सब चीजें जो है हमको प्राप्त होती हैं. हमारे शरीर में कुछ मात्रा में कैल्शियम भी पाया जाता है, पोटेशियम भी है, सोडियम भी है, मैग्नीशियम भी है, फास्फोरस भी है, आयोडीन भी है, आयरन भी है, क्रोमियम भी है, क्रोमियम भी है, कॉपर भी है, कोबाल्ट भी है. ठीक. जिसका पार्ट जो न्यूट्रिएंट बिग साइज में होता है वो मैक्रो होता है, जो छोटा जो बिल्कुल सूक्ष्म होता है वो माइक्रो होता है, जो ब्लड में हमारे पाया जाता है. ओके. मिनरल्स. फर्स्ट, mineral definitions. Explain the minerals. What is a mineral? Minerals are essentials in our diet. Okay? हमारी डाइट में बहुत जरूरत है इसकी, मिनरल्स की. About 4% of our body weight in made of the minerals. Minerals are required for healthy teeth, bone and muscles. Minerals are also used by the body for various activities such as the transmission of the nerve impulse, formation of hormones, maintenance of the heartbeat. Minerals can be classified into macro, major mineral and micro elements or trace minerals. Our body requires more amount of macro minerals than trace minerals. Macro minerals are macro elements such as the calcium, phosphorus, sodium, chlorine, magnesium, potassium, sulfur, cobalt, copper required by our body in more amount. Are you understand? One gram of each of these minerals per day. 1.1 gram of each of these minerals per day. On the other hand, trace element or micro minerals such as the copper, iron, iodine, fluoride, cobalt, chromium, selenium and zinc are required in less amount. 0.01 gram is each trace element पर डे. इस तरीके से हमें शरीर को जो है इन चीजों की जरूरत पड़ती है. 0.1 ग्राम each of these minerals per day requirement and 0.01 gram of each day element per day the micronutrient from food, vegetables and मिल्क. इन सब चीज़ों से हमें जो है इसकी पूर्ति पूरी होती है. फ्रूट हो गया, वेजिटेबल होगी और दाल, हमारी पल्स हो गया, व्हीट है, आटा है, इनसे हमारी रिक्वायरमेंट पूरी होती है. अब ये चीज़ें कहाँ से मिलती हैं? कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस. इसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं. मैक्रो मिनरल्स. सम मैक्रो मिनरल्स आर डिस्क्राइब्ड बिलो. दिए हुए हैं calcium, potassium, sodium, magnesium and phosphorus. Number 1 macronutrients. Calcium. Calcium is among the top macrominerals in terms of growth and development of our bone and teeth. It makes the teeth and bone strong and healthy. It helps in the blood clotting. A deficiency may cause rickets. It is found of various products such as cheese, milk,
ऑरेंज जूस, एग, योगर्ट, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स। सीरियल्स मीन्स सीरियल्स, अनाज, इनसे हमें प्राप्त होता है क्या? कैल्शियम। और ये कैल्शियम हमें किन किन चीजों के, हमारे शरीर के किन किन हिस्सों को जो है डेवलप करता है बेटा? टीथ एंड बोन्स। और ज्यादा मात्रा में वही पाया जाता है क्या? कैल्शियम। कहां से मिलता है बेटा कैल्शियम? विद डिफिशिएंसी मेड इट इज फाउंड इन वेरियस प्रोडक्ट, चीज, पनीर, ठीक, मिल्क, ऑरेंज जूस, एग, योगर्ट, ग्रीन वेजिटेबल एंड सीरियल्स। जो अनाज होते हैं, अनाज में क्या क्या आता है बेटा? बाजरा, गेहूं और राइस, दालें, कई सारी चीजें, उसमें कई तरह की दालें होती आती हैं। इन सब चीजों को खानी चाहिए। इनको खाने से हमारे शरीर को कैल्शियम मिलता है और अधिक मात्रा में मिलता है हमारे शरीर को। यहां से हमें पूर्ति होती है। सपोज कि हम इन चीजों को नहीं खाएं तो फिर हमारी शरीर क्या होगा? वीक हो जाएगा। बोन, टीथ हमारे क्या होंगे? कमजोर हो जाएंगे। तो फिर हमें मेडिसिन के थ्रू इन चीजों को लेना पड़ेगा। तो आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट्स बेस्ट है या फिर नेचुरल? नेचुरल, ठीक है, ये समझने वाली चीज है। पोटेशियम, पोटेशियम भी मिलता है हमारे शरीर को। कहां से मिलता है? कौन से फूड से मिलता है? आइए उसको जानते हैं। पोटेशियम is one of the most important minerals in diet. पोटेशियम बहुत इंपॉर्टेंट है। It is helpful in the keeping the nervous systems and muscular systems fit and active all the time. It helps in the maintaining the amount of water in blood in tissues. Its main source of the banana, tomato, green leaf vegetables, peanuts, citrus fruit, beans. सिट्रस फ्रूट कौन से होते हैं बच्चों? नींबू, ऑरेंज, लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, कीनू, लाइक दैट, ऑरेंज ब्रदर, मौसमी, ओके, एंड ग्रीन लीफ हो गया, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, हरे पत्तीदार सब्जियां, पीनट्स हो गए, बनाना हो गया, टमाटो है। इनसे क्या मिलता है? हमें पोटेशियम मिलता है। सबसे ज्यादा पोटेशियम किसमें होता है? बनाना में, ओके। अच्छा, अगर हमें पोटेशियम प्रॉपर तरीके से ना मिले तो हमें किस प्रकार की जो है प्रॉब्लम हो सकती है बॉडी में? तो ब्लड में जो है पोटेशियम नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2, नर्वस सिस्टम वीक हो जाएगा, मस्कुलर सिस्टम जो है वो अनफिट हो जाएगा। मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम कहां से शुरू होता है बेटा? आपकी स्पाइनल कॉर्ड से जो है माइंड तक जाता है, ठीक, वहां तक जाता है। वो आपका जो है नर्वस सिस्टम है, वो वीक पड़ जाएगा। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ सेकंड के लिए आप लोग जो है कुछ चीज भूल जाते हैं या वर्क नहीं कर पाते हैं, तो नर्वस सिस्टम ही है वो आपको जो है प्रॉपर तरीके से जो है आपको जो अलर्ट रहने के लिए जो सिग्नल देता है वो जल्दी से नहीं दे पाएगा अगर नर्वस सिस्टम वीक है। इसलिए ध्यान रखना, नर्वस सिस्टम को बेस्ट बनाने के लिए पोटेशियम बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, सोडियम। इट हेल्प इन द मस्कुलर एक्टिविटी। इट इज ऑल्सो हेल्प इन द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। ये जो मैं आपको अलर्ट रहने का जो बता रहा हूं, जो वो है ट्रांसमिशन नर्व इम्पल्स। ट्रांसमिशन नर्व इम्पल्स आपको प्रॉपर तरीके से नहीं दे पाएगा। कौन? आपका शरीर आपके माइंड को, और माइंड उस पर एक्शन नहीं कर पाएगा। दिस इज नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम। अगर ऐसा नहीं हुआ, इसको बेस्ट करने के लिए हमें मिनरल्स एंड विटामिन लेना बहुत जरूरी है।
अब सोडियम क्या है? इट्स मेन सोर्स आर द टेबल सॉल्ट, पिकल्स एंड बटर। यहां से क्या मिलता है हमें? सोडियम। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम इट रिपेयर एंड मेंटेन बॉडी सेल्स। कौन? मेंटेनेंस, वो मैग्नीशियम। इट इज फाउंड इन द मीट, ब्राउन राइस, बीन्स, होल ग्रेन्स। इससे आपको क्या मिलता है? मैग्नीशियम। और ये किसको रिपेयर करता है बेटा? मेंटेन बॉडी सेल्स, बॉडी के सेल्स को मेंटेन करता है। सेल टिश्यूज जो मेंटेन होते हैं, सेल भी टूटते हैं, टिश्यू भी टूटते हैं, फिर वो रिपेयर होते हैं। इनको रिपेयर करने के लिए कौन बेस्ट है? वो है मैग्नीशियम। उसके बाद है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द बोन एंड टीथ। It keeps the muscles and nerve activities normal. It is found in rich quantity in egg, fish, goat liver, milk, unpolished rice. समझ रहे हैं? इसको ये क्या किस चीज के लिए हेल्प करता है बेटा? किस चीज को है फॉस्फोरस? बोन एंड टीथ को मजबूत बनाने के लिए। और सबसे ज़्यादा जो है फॉस्फोरस किसमें मिलता है? एग में, फिश, कॉड लिवर, मिल्क, अनपॉलिश राइस। ओके, इतना खत्म हमारा 5 पॉइंट कंप्लीट। आफ्टर दैट माइक्रो मिनरल्स। माइक्रो मिनरल्स क्या है? आयोडीन, आयरन, क्रोमियम, कॉपर एंड कोबाल्ट। Iodine, it help in the production of the hormones in the thyroid glands. It is also significant for proper growth and development of the body. Lack of the iodine can cause goiters, swollen thyroid gland and mental rehydrations. It is found in the iodized salt, fish and seafood. किसके लिए आयोडीन किसके लिए हेल्पफुल है? थायराइड ग्लैंड। Where the thyroid gland? Where thyroid? This side. This is the gland, is the thyroid gland. Okay. एंड और इसको जो है रिपेयर, मेंटेन और इसको जो है एक्टिवेट रखता है कौन? आयोडीन। आयोडीन सबसे ज्यादा किसमें होता है बेटा? पोटैटो। ये तो है ही है जो आपको बताया गया है। इट इज फाउंड द आयोडाइड साल्ट, फिश एंड सी फूड। ठीक, लेकिन अगर आपको आयोडीन ही लेना है तो आयोडीन आप जो है पोटैटो होता है, पोटैटो का जो बाहर का जो कवर होता है, बाहर का जो उसका कवर होता है, उसके और पोटैटो के बीच में एक लेयर होती है, वो आयोडीन की लेयर है। पोटैटो को कभी भी धोकर काट कर धोना नहीं चाहिए, उसको धोकर काटना चाहिए और फिर सब्जी बना लेनी चाहिए। वहां से ज़्यादा आयोडीन मिल सकता है आपको। फिर जो साल्ट है, वो जो साल्ट में मिक्स होकर आता है, साल्ट में अलग से नहीं आता है कि साल्ट में जो है आयोडीन साल्ट में जो है मतलब नेचुरली आ रहा है, उसमें भी आयोडीन डाला जाता है। वो बड़े बड़े थैले होते हैं उसके सॉल्ट के, उसमें आयोडीन डालते हैं, तब वो टाटा नमक के द्वारा, कंपनी के द्वारा या अदर कंपनी के द्वारा जो है हमको भेजा जाता है। तो अगर नेचुरल आयोडीन लेना है तो फिश से लेना है और सी फूड से लेना है, पोटैटो से ले सकते हो आप लोग। पोटैटो को डायरेक्ट काट दो, कटिंग करके डायरेक्ट इसको जो है अप्लाई कर दो खाने में। ओके, नेक्स्ट आयरन। आयरन इज एसेंशियल इन द प्रोडक्शन ऑफ द हीमोग्लोबिन। It is found in the it is deficiency cause anemia. It is found in the liver,
कहाँ मिलता है ये? इट इज फाउंड इन द लीवर, मीट, एग, ड्राई फ्रूट, स्पिनच, बनाना, green leaf vegetable, dry fruit like that, almond, हाँ cashew nut, एंड नाम बताइए यार, आप लोग तो खाते होंगे ड्राई फ्रूट्स, ठीक है, पिस्ता, ये जो है ये सभी चीजें जो है ड्राई फ्रूट में आती हैं। इसको इसमें जो है सबसे ज्यादा आयरन आपको मिलता है। ग्रीन वेजिटेबल में आपको आयरन मिलेगा लाइक दैट, पीछे ग्रीन वेजिटेबल, पालक, ब्रोकली, ओके, इस तरह की सब्जियां जो है हरी सब्जियां, उसमें आपको जो है आयरन मिलेगा। मीट में आपको आयरन मिल जाएगा, एग में मिल जाएगा आपको आयरन, लेकिन एग में आजकल जो है थोड़ा सा एग में उतना बेस्ट जो ओरिजिनल एग जिसे हम कहते हैं, जिसे हम कहते हैं देसी एग जिसे हम कहते हैं, वो उसमें सबसे ज़्यादा जो है आपको विटामिन और मिनरल्स आपको वहाँ पे मिलेंगे। तो मिनरल्स आपको पता लग गए हैं, कभी भी आपसे पूछा जाए मिनरल्स क्या है, उसके बारे में आपको डेफिनेशन दे दी। मिनरल्स बता दीजिए, मैक्रो मिनरल, माइक्रो मिनरल, ये सभी चीज़ें जो है मिनरल्स हैं। आप लोग याद कर लीजिए, मैं आपको एग्जाम में दे सकता हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि मिनरल लिख दूंगा और कोई डिफरेंट नेम एंड ये नेम, इनमें से कौन सा नहीं है, कौन सा है, तो आप उसको टिक कर सकते हैं, जिसे मिनरल। ओके, क्रोमियम, क्रोमियम का जो है इट इज अ स्टिमुलेट्स इंसुलिन एक्टिविटीज, इट डेफिशिएंसी may cause diabetes, it is found in the सोयाबीन। कहाँ मिलता है बेटा क्रोमियम? क्रोमियम कहाँ मिलता है? सोयाबीन, ब्लैक ग्राम, कैरेट, टमाटो, ग्राउंडनट, बाजरा, बार्ले। बार्ले क्या चीज है बताओ? बार्ले जो है जौ है, जौ, जो वो गेहूं के ऊपर जो बालियां बनी होती हैं उसको जो है वैसे निकाल कर उसका आटा बना लो डायरेक्ट, गेहूं ना निकाल के, तो बार्ले है वो। अच्छा, बाजरा का भी खाया आपने? सबसे ज्यादा राजस्थान में होता है बाजरा। अच्छा, ब्लैक ग्राम क्या है पीछे? ब्लैक ग्राम है काला चना, गुड, बहुत टाइम लगा रहे हो। सोयाबीन कभी खाई किसी ने दाल सोयाबीन की? खाइए, व्हाइट व्हाइट सी गोल गोल सी होती है, बहुत बहुत ज्यादा प्रोटीन है उसमें, क्रोमियम बहुत ज्यादा होता है उसमें। अच्छा बताइए, क्वेश्चन आ सकता है आपके पीछे क्वेश्चन आ सकता है कि क्रोमियम की डेफिशिएंसी से क्या प्रॉब्लम हो सकती है? क्रोमियम की कमी से जो है क्या प्रॉब्लम आपको आ सकती है? क्या डेफिशिएंसी है? डायबिटीज। और क्यों होगा डायबिटीज? क्यों होगा? इंसुलिन को एक्टिवेट नहीं, जब नहीं होगा इंसुलिन एक्टिवेट नहीं होगा तो इंसुलिन को एक्टिवेट करता है कौन? क्रोमियम। इसको ध्यान रखना है आप लोग को, क्वेश्चन कई बार इसी पुट हो जाएंगे आपके। कॉपर, इट इज हेल्प आयरन इन द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, इट इज फाउंड इन द एग, पल्स एंड ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स। कहां से मिलेगा ये क्रोमियम? गुड, तो ये याद रख करें आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, करते नहीं आप लोग याद। एग्जाम में भी नंबर कम है आपके, अभी फिर आने वाले हैं ये बोर्ड जो है, फिर उसमें आप लोग फिर उलझोगे, क्या है सर ने तो पढ़ाया नहीं है, सर ने ये कर दिया। कुछ नहीं है ऐसा, सब पढ़ाते हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आता है, एक के चक्कर में सब बेकार हो जाते हैं। सब एक्टिवेट रहे और अलर्ट रहे, ठीक है, सतर्क रहे। कोबाल्ट, इट इज, कोबाल्ट क्या है? अब कोबाल्ट से कई बार बड़ा अटपटा सा नाम है, आपको ये भी नहीं पता होगा कि हमारे जो है न्यूट्रिएंट्स जो है ये है और ये खाने में पाए जाते हैं। कोबाल्ट कभी सुना? इससे पहले कभी सुना तुमने? कभी भी नहीं सुना होगा तुमने। फेसबुक में जो दिख गया या उसमें जो दिख गया इसका नाम, यूट्यूब में तो ठीक है, टीचर ने पढ़ा दिया तो ठीक है। कभी अपनी तरफ से नहीं देखना है कि शरीर में कौन कौन से मिनरल्स होते हैं, कौन से विटामिन होते हैं शरीर को
जरूरत होती है जिन चीज़ों की। कहने का मतलब यह है कि शरीर को किन किन चीज़ों की जरूरत होती है, तो कोबाल्ट की भी जरूरत होती है। ठीक, कोबाल्ट क्या है, इसकी 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 वजह से क्या हमें डेफिशिएंसी हो सकती है। Cobalt, it is protect us from anemia and is found in the green vegetables, milk and meat. ओके, प्रोटेक्ट किसको करता है बेटा, एनीमिया। एनीमिया क्या चीज है, एनीमिया एनीमिया डेफिशिएंसी है। ठीक, किस चीज की है, बॉडी में होती है। एनीमिया क्या होती है बताओ, खून की कमी, पीछे से बोल रहा है कोई। ठीक, तो एनीमिया इसको जो है प्रोटेक्ट करता है। कौन करता है, कोबाल्ट। कोबाल्ट कहां से मिलता है, वेजिटेबल से। कौन सी वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल, मिल्क एंड मीट। ठीक, पीछे मीट याद आ रहा है उसको, पीछे से मीट कह रहा है, मीट। तो ठीक है, फिर आप लोग ओके स्टूडेंट, टुडे माय टॉपिक इज कंप्लीट द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। इन माइक्रोन्यूट्रिएंट इज द मिनरल्स। ओके, थैंक यू वेरी मच।